Hello everyone and welcome to English class. So as you know we were studying chapter number 5 of our Hornbill book, that is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala. So in the last video we have discussed that the author Nani Palkhiwala, he talked about the greatness and wisdom of sustainable development. Like uh, when the human wants to complete its needs, okay, when he want to attain his needs without harming the natural resources, okay, so that is called sustainable development. So he talk about the wisdom of or you can say the application of sustainable development in our in day-to-day life or in our society. Okay, so he also told through many examples that man is the most dangerous animal on the earth. Okay, so we talk about the superiority, we talk about the greatness of human beings, but on the other hand he talk about that he is the most dangerous animal on this earth because he is using his wants and needs at a very large extent, that he is depleting all those things and not even sparing them for the future use. Okay, so that's all he is talking about in this chapter through many examples. But Nani Palkhiwala, he's talking about not only talking about the problems, he's also talking about the solution. So he also says that only man is the superior of all the species. जितनी भी species है इस world के अंदर, तो जो man है, he is the most superior one. So it is his moral duty to protect this planet. Okay, so this was a thing we talked in the last video. And now let's see further कि जो हमारे narrator है नानी पालखीवाला, what he tells more in this during this chapter. So here I'm talking about supplying our food. Okay, yeah. So before that मैं आपके लिए पैराग्राफ फिर से रीड कर देती हूँ एक. ओके, यू कैन ओपन योर book at page number 44, last paragraph. Okay, so Nani Palkhiwala, he discussed that Mr. Lester R. Brown, okay, so he says that the earth economy is based on four systems. Okay, ये हमारा जो बायोस्फीयर है वो चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ फिशरीज, ओके, जिसको हम मैराइन के बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज़ फॉरेस्ट, ओके, जिसके अंदर हम अपनी ट्रीज एंड प्लांट्स एंड श्रब्स एंड हर्ब्स को कैलकुलेट करते हैं. And the third one is grasslands, that is the open lands which are used for grazing purpose and etc. Okay, and the last one is croplands. Okay, croplands, or you can say the different types of crops on which we are used for our consumption. Okay, so these are the four things, or these are the four points that includes in our biological system, which help in the foundation of a global economic system. Okay, next we'll continue with the same line. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry. सो ही सेज दैट कि जो ये फोर जो पॉइंट्स हैं, यानी फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, सो दे एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री. ओके, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हम बात करते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दे एक्ट एज अ रॉ मटेरियल इन all of the things. Okay, so he wants to say that they are responsible for giving us the food. जो हमें food मिलता है, जो हम consumption के लिए use करते हैं, so these four things are responsible for that, except mineral and petroleum derived synthetics. Okay, so he also is making an exception also कि जो minerals है और जो petroleum derived synthetics हैं, उनको एक्सेप्शन मानते हुए ऑल द थिंग्स विच वी आर कंज्यूमिंग, जो हम कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, दे आर दीज फोर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्पज. ओके, further he says that in large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level. Okay, so he says that कि जो ये सिस्टम है, ह्यूमन जो है वो ये क्लेम करता है कि दे आर यूजिंग एट अ वेरी अनसस्टेनेबल लेवल, कि जो ह्यूमन्स हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा अनवाइजली यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, दे आर ओनली यूज्ड अप. ओके, एंड दे आर नॉट क्रिएटिंग देम अगेन. ओके,
दैट इज़ कॉल्ड अनसस्टेनेबल लेवल, की उसको सस्टेन करके नहीं रख रहे हैं, यानी उनको फर्दर यूज़ के लिए नहीं बना रहे हैं, दे आर नॉट क्रिएटिंग दैम, अ पॉइंट वेयर द प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, कि जहाँ पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी उसका जो फर्दर यूज़ है और जो फर्दर क्रिएशन है, प्रोडक्शन है, दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड, कि वो वापस नहीं हो रहा है, दैट हैज़ जस्ट बीन यूज्ड अप, वो सिर्फ यूज्ड पर्पज़ के लिए ही किया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट इज सेज व्हेन दिस हैपन्स फिशरीज कोलैप्स, कि जब हम ये जो 4 पॉइंट्स बताए हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, ओके, दीज आर द मेजर वंस. ओके, तो जब इनका हम एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं तब क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे सामने. फिशरीज कोलैप्स, की जो फिशरीज हैं वो क्या है, डिटेन करने लग जाती हैं, कोलैप्स करने लग जाती हैं, कम होती जाती हैं. ओके, फॉरेस्ट डिसअपियर, अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जो डिफॉरेस्टेशन है उसको करते जाएंगे तो जो फॉरेस्ट है वो कहाँ से हमें दिखेंगे. ओके, सो वो डिसअपियर हो जाएंगे. नेक्स्ट, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, की जो ग्रासलैंड्स हैं जहाँ हमें ग्रीनरी एंड वेजिटेशन हमें नज़र आती थी. ओके, सो वहाँ अब क्या है, बैरन वेस्टलैंड्स है, दे कांट बी यूज फॉर एनी पर्पज़, वहाँ हम कोई क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते हैं, वहाँ भी कोई ग्रेजिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, दे आर जस्ट एज बैरन. ओके, वो एक वेस्टलैंड ही है और वहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता. ओके, रादर देन यूज फॉर स्पोर्ट्स एक्सेट्रा कुछ भी. ओके, एंड क्रॉपलेट्स डिटोरेट, और जो क्रॉपलेट्स हैं वो क्या हैं, जो क्रॉपलेट्स हैं वो क्या हैं, मतलब डिटेरोइट हो रही है. डिटेरोइट मतलब वो कम, उनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है, दे आर गेटिंग लेस इन नंबर. ओके, सो दिस ऑल हैपन्स व्हेन वी आर यूजिंग दिस ऑल द सिस्टम एट एन अनसस्टेनेबल लेवल, जब उनको हम सस्टेन करके नहीं रख रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग दैम, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैम. ओके, जब उनका हम एक वाइजली यूज़ नहीं कर रहे हैं, देन दिस ऑल आर collapsing and disappearing and getting depleted. In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. ओके, सो नाउ आज के प्रेजेंट इरा के बारे में बात करें तो लोग क्या हैं, जब उनको एक अवेयरनेस मिल गई है दैट प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, की लोगों को लगता है दैट प्रोटीन इज़ वेरी गुड. ओके, प्रोटीन से हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी मेंटेन करके रख सकते हैं, और राइट फ्रॉम द मॉर्निंग ओके वी स्टार्ट इन टेकिंग प्रोटीन. ओके, सो जिन जगहों पर जो प्रोटीन की जो अमाउंट है, जिनको लगता है कि हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ क्या हो रहा है, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे. जो फिशेस है उसके अंदर जो प्रोटीन का जो रेट है, अमाउंट होता है, दैट इज़ वेरी वास्ट. ओके, सो ओवर फिशिंग हो रही है उसकी वजह से, एंड रिजल्ट क्या है, फिशरीज आर यूज्ड अप, जो फिशरीज हैं वो सारी ख़त्म होती जा रही है, एंड उसकी वजह से क्या है, जो फिशरीज हैं वो डिप्लीट हो रही हैं. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग. अब जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, कोई और मतलब उनके पास कोई और फ्यूल नहीं है, उनके पास कोई और मीन्स नहीं है कि वो किसी और तरीके से क्या है कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके, तो वो क्या यूज़ करते हैं, फायरवुड यूज़ करते हैं, यानी वुड को यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज़, जिसकी वजह से क्या है, जो फॉरेस्ट है, लोकल फॉरेस्ट क्या है, दे आर गेटिंग डेसिमेटेड और यू कैन से डिप्लीटेड. Okay, in some places firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. Okay, so this is a very peak line of this chapter. अगर आप अपने आंसर्स के अंदर इस लाइन को मेंशन करोगे, it will give a very sparky creature to your टीचर, जो वो चेक करेंगे, सो ही विल गेट एन स्पार्की लाइन कि हाँ बच्चे को पता है. ओके, सो इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, कि जो फायरवुड है यानी जो फ्यूल है जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दैट हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, वो इतना ज़्यादा महंगा होने लग गया है. व्हाट गोज़ अंडर द पोट, व्हाट गोज़ अंडर द पोट का मतलब है कि फायरवुड. ओके, कि जो फायरवुड हम यूज़ कर रहे हैं दैट हैज़ बिकम मोर कॉस्टली देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट. गोज़ इनसाइड इट का मतलब क्या है, द फूड, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा महंगा तो क्या है, जो फायरवुड हम यूज़ कर रहे हैं उस खाने को पकाने के लिए. ओके, सो फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, एंड वाई इज़ इट बिकमिंग सो एक्सपेंसिव, बिकॉज ऑफ द लेवलिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, की जो फॉरेस्ट हैं वो उनका जो नंबर है दैट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, वो कम होता जा रहा है, इसलिए क्या है फायरवुड महंगा हो रहा है, और उसी की वजह से क्या है, दिस स्टेटमेंट हैज़ बिकम ट्रू. Since the tropical forest is in the world of Dr. Myers,
The powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. अब नानी पालकीवाला और एक स्टेटमेंट देते हैं कि सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, कि हमेशा से जाना जाता है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, उनको इवोल्यूशन का पावर हाउस बोला जाता है बिकॉज दे फॉर्म सो मच ऑफ न्यूमरस ऑफ बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज, उनको पावर हाउस बोला जाता है कि जितना भी इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है, यानी कि जो स्पीशीज़ है वो जो न्यू स्पीशीज़ है, ओके उनको इवोल्यूशन कहते हैं, जो न्यू स्पीशीज जनरेट होती हैं, ओके। सो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है दे आर द पावर हाउस ऑफ दैट इवोल्यूशन, ओके। और अगर इसी तरीके से जो फॉरेस्ट है इफ़ दे आर गेटिंग डिप्लीटेड तो सेवरल जो और स्पीशीज ऑफ लाइफ है, ओके, दे विल गेट एन एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इस डिस्ट्रक्शन, कि अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वो जो और इवोल्यूशन है यानी जो और स्पीशीज है दे विल ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट इज इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, ओके। ये हमेशा से जाना जाता है दैट जो फॉरेस्ट है वो मैनकाइंड के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। डिजर्ट्स फॉलो, और जो डिजर्ट्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रीमोनी of tropical forest is now eroding at a rate of 40 to 50 million acres a year, ओके। सो यहाँ पर जो नानी पालकीवाला है वो क्या बोलते हैं कि जो वर्ल्ड एशियन पैट्रीमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, पैट्रीमोनी का मतलब होता है प्रॉपर्टी इनहेरिट फ्रॉम मेल जेंडर, ओके। जो मेल जेंडर से हमें जो प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, ओके, उनको बोलते हैं पैट्रीमोनी। सो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है दे एक्ट लाइक आर एंसेस्टर्स, वो हमारे एंसेस्टर्स की तरह हैं। एंड इफ़ दे गेट डिप्लेट, ओके, अगर वो इरोड होते जाएंगे, अगर वो डिप्लीट होते जाएंगे एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स ईयर, अगर एक साल के अंदर 40 to 50 मिलियन एकर्स की स्पीड से अगर वो इरोड होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट केज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र। और उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो हम डंग को यूज़ कर रहे हैं, ओके, जो जितना ज़्यादा हम डंग को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि जहाँ पर जो डंग जलाया जाता है, ओके, इट डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट केज द नेचुरल फर्टिलाइज़र, कि जो सॉइल हम जिसको एक नेचुरल फर्टिलाइज़र बोलते हैं, ओके, उसकी जो फर्टिलिटी है यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ओके। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000, okay. सो यहाँ पर जो नरेटर हैं वो क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है, अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज़ नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, कि जैसे कि ये रिपोर्ट 1994 के अंदर पब्लिश की गई थी, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है वो ये एस्टिमेट लगाता है कि आज के टाइम में जितने फ्यूल वुड की डिमांड है, ओके, यहाँ 2000 तक जो फ्यूल वुड की डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या है, वी नीड टू कंप्लीट अ 5-fold इंक्रीज़, 5-fold यानी 5 टाइम्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें, किसको, फॉरेस्ट प्लांटिंग को, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करना पड़ेगा सो दैट वी कैन कॉप अप विद द एक्सपेक्टेड यानी कि 2000 तक जितनी भी फ्यूल वुड की डिमांड होनी चाहिए, ओके, सो उसको हम कॉप अप कर सके, उनको हम फुलफ़िल कर सके। नेक्स्ट ही सेज जेम्स स्पेथ, जो नरेटर हैं वो बार बार क्या है, ही इज़ राइटिंग अ रिपोर्ट, ओके। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, हम अपने फैक्ट को और यू कैन से हम अपने आइडिया को फैक्ट्स के फॉर्म के अंदर क्या है एक्सप्लेन करते हैं। सो नानी पालकीवाला ही इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग थ्रू मैनी ऑफ द एग्जाम्पल्स, मैनी ऑफ द फैक्ट्स एंड डेटाज, कि कैसे हमें अर्थ को अगर मेंटेन करके रखना है, इफ़ वी वांट टू सस्टेन इन दिस लाइफ, ओके, एंड इफ़ वी वांट कि हमारे जो चिल्ड्रन हैं और यू कैन से जो हमारी फर्दर जनरेशन है दे कैन ऑल्सो लिव ऑन दिस अर्थ, और दे कैन इवन प्रोड्यूस, वो अगर इस दुनिया में आना भी चाहती हैं देन वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमें खुद को ही क्या है उसके लायक बनाना पड़ेगा। सो इज़ गिविंग अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल,
जेम्स पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, अब जेम्स पेथ हैं जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, said the other day we were saying that we are losing the forest at an acre a second but it is much closer to an acre and a half to a second। तो जेम्स पेथ क्या कहते हैं कि पहले एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जो हम फॉरेस्ट हैं उसको किस तरीके से किस रेट से लूज़ कर रहे हैं एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि एक सेकेंड के अंदर एक जो एकड़ का जो फॉरेस्ट है वो डिप्लीट होता जा रहा है या वो ख़त्म होता जा रहा है। बट अकॉर्डिंग टू जेम्स पेथ वो ये कहना चाहते हैं दैट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ, यानी 1.5 के बराबर है टू अ सेकेंड। ओके, सो जो हमारी रिपोर्ट्स है या जो हमारी जो एस्टिमेशन है दैट इज़ वेरी बाइज्ड, हम कह सकते हैं बाइज्ड है या वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ओके, सो ही इज़ गिविंग दैट एग्जाम्पल। Next he says, Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. So here also Nani Palkhiwala he is taking another example from India prospectus. Okay, सो इंडिया के प्रोस्पेक्टस से क्या बोल रहे हैं कि इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर देर इज़ एन आर्टिकल इन दैट विच स्टेट्स दैट द स्टेट शेल एंडेवर, स्टेट का मतलब है कंट्री। ओके, सो स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमसे प्लीड करता है, वो भी हमसे एंडेवर करता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को और हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और फिशरीज और एवरीथिंग, ओके, सो उनको प्रोटेक्ट करना क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड प्रोटेक्ट दैम। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन जो endless anguish है यानी जो कॉन्ट्रेरी थिंग है, ओके, सो वो क्या बताती है कि जो लॉज हैं दे आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, कि लॉज जो बनाए जाते हैं इंडिया के अंदर वो कभी भी रिस्पेक्टफुली अप्लाई नहीं किए जाते एंड दे आर नेवर एनफोर्स्ड इन इंडिया, ना ही उनको अप्लाई किया जाता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे मेंशन है कि जो कास्टिज्म है, कास्टिज्म यानी कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कास्ट, ओके, डिफरेंट जो कास्ट हमने बनाई हुई हैं तो उनके बीच में क्या है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड, की जो अनटचेबिलिटी है, लेबर है, कास्टिज्म है, रेसिज्म है, सो दे शुड बी अबॉलिश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, दे शुड बी अबॉलिश्ड फ्रॉम द सोसाइटी, बट दे फ्लॉरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट रेज्ड ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेटिस्टिक रिपोर्ट बनाता है हर साल तो उसके बाद वो ये भी बताता है कि इवन आफ्टर 44, ओके, एज द आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन 1994, तो उसके हिसाब से क्या बता रहे हैं कि 44 years के बाद भी क्या है जो ये सभी चीज़ें हैं दे आर फ्लरिश शेमलेसली, उनको ये दीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, इनको अबॉलिश हो जाना चाहिए था लेकिन क्या है ये अभी भी उतने ही शेमलेसली और ओपनली क्या है दे आर इंक्रीजिंग एट अ रेट एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अनएनफोर्स्ड ऑफ द लॉ इन इंडिया, की लॉ को हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं इंडिया में। दैट इज़ द रीज़न वाई कि जो वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट है दे आर गेटिंग डिप्लीटेड। The recent report of our Parliament Estates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. ओके, सो एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है जो पार्लियामेंट बनाता है, सो उसमें क्या बताया गया है, द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, की जो पिछली 4 डिकेड्स हैं यानी पिछले जो 40 साल हैं, ओके, सिंस इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद क्या है इंडिया के जो फॉरेस्ट का जो डिप्लीशन है, ओके, वो कुछ इस तरीके से है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, अब डेटा के अकॉर्डिंग क्या है इंडिया की क्या कंडीशन है, इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर, कि एक साल के अंदर क्या है जो इंडिया की जो फॉरेस्ट है दे आर डिप्लीटिंग एट अ रेट ऑफ 3.7 एकर्स अ ईयर। ओके, लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, की बहुत सारे एरियाज जिनको हम एज अ फॉरेस्ट लैंड मानते थे या उनको सिग्निफाई करते थे आर ऑलरेडी वर्चुअली
ट्रीलेस, दे आर एक्चुअली बिकमिंग ट्रीलेस। अब वहाँ पर क्या है, देयर आर नो ट्रीज ओवर इन दोज लार्ज एरियाज जिनको हम पहले फॉरेस्ट लैंड माना करते थे। ओके, the actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics। कि जो नानी पालकी वाला है वो अपनी रिपोर्ट में ये भी सिग्निफाई कर रहे हैं दैट द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, की जो फॉरेस्ट का जो एक्चुअल लॉस है दैट इज़ टू बी 8 टाइम्स। ओके, कि वो 8 टाइम्स ज़्यादा है द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। की गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, दे आर जस्ट फॉर नंबर, दे आर नॉट फॉर गिविंग द एक्चुअल रिपोर्ट। ओके, वो सिर्फ एक नंबर के लिए है एंड देयर रिपोर्ट इज़ नॉट सो गुड। ओके, एक्चुअली जो लॉस है फॉरेस्ट का दैट इज़ 8 टाइम्स इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। ओके, लेट्स सी फर्दर कि जो नानी पालकी वाला है वो और क्या बताते हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। अब जो वर्ल्ड है वो क्या है, आफ्टर 1972 कह सकते हैं हम। ओके, सो जैसे जैसे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया है, दे द पीपल वर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट देयर कंट्री, द पीपल वर बिकमिंग अवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल। सोसाइटी के बारे में सोचने लगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया या बहुत सारे ऐसे प्लान्स और एजेंसीज़ को स्टार्ट किया, 5 ईयर प्लान्स को बनाया गया ताकि सोसाइटी के अंदर एक वेल पब्लिश्ड स्ट्रक्चर हो लोगों को आगे प्रोसीड करने के लिए। सो इन दैट ऑल्सो जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी की हेल्प से ओके एक 3-year स्टडी की थी, जिसके अंदर क्या रिजल्ट आया था, इट वाज डन बाय यूनाइटेड नेशंस। ओके, एंड उन्होंने क्या रिजल्ट दिया दैट द इन्वायरमेंट हैज़ डिटोरेटेड सो बैडली, कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा डिप्लीट हो गया है दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। कि जो 88 कंट्रीज़ के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी और वहाँ पर क्या है, दे आर इन वेरी critical manner। okay, they are in very critical, they are at a very critical stage। okay, so you can estimate students कि out of 219 I think so या 219 countries जो हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, and out of that 219 88 countries are in a very critical stage। ओके, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज के अंदर हैं, और अगर अभी उसको नहीं बचाया जाएगा या अभी उसके ऊपर एक कंट्रोल नहीं रखा जाएगा, देन द पीपल विल हैव टू सफ़र। एंड सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वो 88 कंट्रीज़ ही सफ़र करेंगी, उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी वर्ल्ड के ऊपर जाने वाला है। ओके, Next he says there can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of the human society। ओके, सो टिल नाउ हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जो नानी पालकी वाला है ही इज़ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स ओनली, कि इसके अनुसार उसकी एस्टिमेशन उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसे डिट्रॉयट हो रहा है, ये फैक्टर्स हैं। सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स ओनली, बट नाउ ही इज़ कैलकुलेटिंग अबाउट द रियल प्रॉब्लम, कि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी को डिट्रॉइट कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, सो उसका मेजर फैक्टर एक कौन सा है, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, कि जिस तरीके से हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। ओके, और यू कैन से सेकेंड बाय सेकेंड। ओके, सो दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। के जो ह्यूमंस हैं या हमारी जो स्पीशीज़ हैं, हमारा जो वर्ल्ड है, सोसाइटी है, हमारा जो प्लानट है, सो उसके डिट्रॉयशन के पीछे कौन सा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट इज़ द ग्रोइंग ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली इंडिया के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। द नानी पालकी वाला इज़ टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, की पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ही इफ़ेक्ट करती है in all over the area। okay, it took mankind more than 1 million years to reach the first billion। कि he is talking that कि जो mankind है यानी जो लोग हैं वो 1 million years लगाते हैं फर्स्ट बिलियन यानी 1 बिलियन कंप्लीट करने के लिए। ओके, यानी 1 मिलियन ईयर्स लगते हैं फर्स्ट 1 बिलियन पॉपुलेशन कंप्लीट करने के लिए। ओके, दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 तक हमारी ये पॉपुलेशन थी। ओके, मतलब ये रेट था कि 1 मिलियन ईयर्स के अंदर 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ती थी। बट
बाय द ईयर 1900, लेकिन 1900 तक क्या है, अ सेकेंड बिलियन वॉज एडिड। अब क्या है कि सिर्फ 100 ईयर्स के अंदर ही, ओके सिर्फ 100 ईयर्स के अंदर ही क्या है, सेकेंड बिलियन वॉज एडिड, एक दूसरी बिलियन क्या है उसके अंदर ऐड हो चुकी थी। मतलब आप देख रहे हो कि जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, कि अब क्या है जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है इट इज स्टेटेड एज 5.7 बिलियन। ओके एंड हेयर स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू कि जो अब 2021 की बात करें, नाउ द पॉपुलेशन इज 7.8 बिलियन। ओके सो आप देख सकते हैं कि जब द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम 1994 की बात कर रहे हैं, द ईयर इन विच द रिपोर्ट हैज़ बिन पब्लिश्ड, तो तब 5.7 है। ओके and we are talking about after just 20 years, 20 or you can say 25 years। okay so सिर्फ 25 years के बाद ही क्या है, हमारा जो रेट है वो 5.7 से 7.8 हो चुका है। so you can clearly see कि जो रेट है of growing the population, it is increasing so rapidly। every 4 days the world population increases by 1 million। so this is the peak line of this whole paragraph। ओके कि इन एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। सिर्फ 4 दिन के अंदर क्या है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है 1 मिलियन से इंक्रीज कर जा रही है। ओके सो दिस वॉज अ वेरी शेकिंग थिंग, और यू कैन से इट वॉज अ वेरी kind of thing which can make the people aware so that he should take the steps right now। ओके कि हम लोग क्या है कि ये एक ऐसा एस्टिमेशन है, ये ऐसा रेट है, ये ऐसी रिपोर्ट है जिससे हमें अभी समझ आना चाहिए दैट वी हैव टू टेक द स्टेप। नेक्स्ट इज सेज फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। ये एक स्टेटमेंट मानी जाती है कि जैसे अगर फर्टिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ओके नई ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए दैट एबिलिटी इज कॉल्ड फर्टिलिटी। ये ज़्यादातर टर्म प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ओके सो फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, कि जो फर्टिलिटी है, अगर हमारी अगर हमारी जो फर्टिलिटी है वो गिर जाती है, कम हो जाती है, सो इट ऑटोमेटिकली मेक राइज इन इनकम, एजुकेशन स्प्रेड होती है एंड हेल्थ भी क्या है हमारी इम्प्रूव रहती है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसके लिए माना जाता है कि जो एजुकेशन है, और यू कैन से द डेवलपमेंट, ओके दैट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है इट इज़ लाइक डिवाइस। ओके एक डिवाइस दैट स्टॉप्स पॉपुलेशन इंक्रीज। ओके जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने से रोकता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव। सो ही स्टेटिंग दैट कि जो डेवलपमेंट है वो होनी बहुत ज़रूरी है, और उसी की वजह से क्या है जो फर्टिलिटी है यानी जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं वो रिड्यूस हो सकती है। ओके बट डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कॉन्टिन्यूस। कि नरेटर जो है वो यहाँ पर ये भी फैक्ट बताते हैं कि जो डेवलपमेंट है, द ओनली फैक्टर इज़ ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि सिर्फ यही एक पॉसिबल नहीं है कि हम फर्टिलिटी को रिड्यूस कर सके अगर प्रेजेंट इंक्रीज जो है वो इसी तरीके से बढ़ता जाता है। कि मतलब अगर एक तरफ हम सोचें कि अगर डेवलपमेंट होती हैं, एजुकेशन बढ़ती हैं, हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटरीज़ हैं, हाइजीनिक जो मैटर्स हैं उनको अगर इम्प्रूव कर देते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, फर्टिलिटी उससे कम हो जाती है, यानी जो लोग हैं वो मतलब कॉन्शियस हो जाते हैं। बट अगर हम डेवलपमेंट को ही बढ़ाते रहेंगे, ओके सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर मतलब उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। बिकॉज क्या है, प्रेजेंट जो इंक्रीज है कंट्रीज़ के अंदर वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट्स चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। ओके तो इसका जो रिजल्ट है, यानी जिस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, द रिच गेट रिच, जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। और जो पुअर हैं, ओके सो दे आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर चिल्ड्रन, जिसकी वजह से क्या है वो पुअर ही रहते हैं। ओके दे आर गेटिंग मोर पुअर। ओके सो मतलब ये यहाँ पर जो नरेटर वही कहना चाहते हैं कि जो रिच हैं दे आर बिकमिंग मोर रिच, क्योंकि उनके जो नीड्स हैं, उनके जो वांट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। ओके अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, की जिस तरीके से अगर आज हम किसी एक चीज़ के ऊपर स्टिक हैं, बट अगर उसका एक एडवांस्ड
प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाता है, ओके। सो जो लोग हैं वो उससे ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, सो दे आर गेटिंग मोर रिच। एंड जो पुअर है दे आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि मतलब उनको तो डेवलपमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दे आर जस्ट अनकॉन्शियस ऑफ द फैक्ट इज, है ना। सो दे बिकम मोर पुअर, और यू कैन से दे रिमेन पुअर ओनली। बट जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ओके, लाइक वन फैमिली इज़ हैविंग 4 चिल्ड्रन, ओके, एंड द सेकेंड फैमिली जब उनको पता ही नहीं है कि जो डेवलपमेंट के बारे में अगर उनको कुछ नहीं पता है या पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, दे आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट, तो क्या है, दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन, ओके। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। अब एक मैंटेलिटी लोगों की ये भी हो सकती है कि ज़्यादा बच्चे हैं यानी ज़्यादा बच्चे यानी कि ज़्यादा लोग हैं, दैट मीन्स मोर वर्कर्स, ओके। लेबर इंटेंसिव जो हम बात करते हैं, ओके। सो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कैपिटल इंटेंसिव की बात करती हैं। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है जहाँ मशीनरीज ज़्यादा वर्क करती है, ओके। बट जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वहाँ पर लेबर इंटेंसिव भी ज़्यादा वर्क करती है, तो वहाँ पर पूरे जो लोग होते हैं दे आर गेटिंग मोर, ओके। सो एक फैक्ट ये भी बन सकता है कि अगर ज़्यादा बच्चे हैं दैट मीन्स मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा वर्कर्स बनेंगे वो, ओके। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग हैं तो उनके पास काम कम होगा, ओके, क्योंकि डेवलपमेंट होती जा रही है, ओके। जो लोग हैं वो लेबर इंटेंसिव से कहाँ जा रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा रहे हैं। दे आर यूजिंग मोर मशीन्स रादर देन द पीपल। लोगों की ज़रूरतें कम हो गई हैं, दे आर ईजिली रिप्लेसेबल बाय द मशीन्स। जो लोग हैं आजकल जो काम लोग कर देते हैं वो मशीन्स ईजिली कर देते हैं, एंड विद इन द वेरी लेस टाइम, ओके। सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है फॉर द हैवी मशीनरीज, बट आफ्टर दैट जो लेबर हैं, ओके, दे आर जस्ट विदाउट वर्क, ओके। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टरलाइज्ड। तो ये नहीं माना जाता कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको कैटल की तरह ट्रीट किया जाए, कैटल की तरह यानी सिर्फ एज अ लेबर यूज़ किया जाए एंड कंपल्सरली स्टरीलाइज, और उनको हमेशा क्या है डिमोलिश किया जाए। बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉशन, कि इसके अलावा क्या है कि कोई और तरीका भी नहीं है लोगों को फोर्स करने के लिए कि वो एक फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान दे। कि जिस तरीके से आज के अगर गवर्नमेंट की बात करें, सो इट इज़ इन देयर प्रोटोकॉल कि 2 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो नहीं होने चाहिए। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन एलिमेंट ऑफ कॉशन। कॉशन का मतलब होता है जब हम फिजिकली या उनको मेंटली प्रेशराइज करें कि आपको ये काम करना ही है, ओके। सो दैट इज़ कॉल्ड कोर्शन। सो गवर्नमेंट ने एक पेनल्टी डाल दी है कि इफ़ यू आर हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, या आपको सच एंड सच कंडीशंस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। सो दिस वाज द ओनली अल्टरनेटिव टू हैव अ फैमिली प्लानिंग इन द country. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty, okay. So एक इन सभी डेटा के जो अकॉर्डिंगली जो नानी पालखी वाला है वो ये कंक्लूड करते हैं कि जो चॉइस है वो किसके बीच में है, आइदर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन की या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रख लो, एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, या फिर पॉवर्टी को कैसे कंटिन्यू करने से रोकना है। अब पॉवर्टी को कंट्रोल करने से बेटर है कि हम पॉपुलेशन को पहले कंट्रोल करें या धीरे धीरे बाद में क्या है उसकी तरफ पॉवर्टी की तरफ भी देखें कि किस तरीके से जो हम इन्फ्लेशन और हाइक की बात करते हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। सो इट वाज रियली बेटर टू हैव focus firstly on control of population. Next he says the population of India is estimated to be 920 million today। कि अगर आज के डेटा की बात करें, okay, so the population of India is to be 920 million today. It is according to the 1994 के estimation, okay, more than the entire population of Africa and South America put together. See, this is a very shaking thing कि जो नरेटर है वो हमें यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ओके, ऑल्दो जो ये डेटा है ये 1994 का है, ओके। सो जो इंडिया की पॉपुलेशन है इट इज़ टू बी एस्टिमेटेड एज 920 मिलियन, ओके। इट इज़ मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ 2 कॉन्टिनेंट्स। 2 कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अगर उन दोनों की पॉपुलेशन को हम इकट्ठा कर दें फिर भी उनकी पॉपुलेशन कम है in respect to the whole population of India, okay.
सो ये जो एस्टिमेशन है इट क्लियरली सेज कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज़ ग्रोइंग ऑन अ वेरी हाई स्पीड. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. कि कोई भी ऐसा इंसान इंडिया के अंदर नहीं है हु इज़ नॉट फैमिलियर विद द कंडीशन. ओके, कि इंडिया की अगर कंडीशन की बात करें, ओके, इकोनॉमिक कंडीशन की अगर इंडिया की बात करें, देन एवरी वन कैन से दैट कि अगर जो लोग हैं, ओके, दे वुड डाई इन देयर हंगरी हटमेंट्स. की अगर उनके जो झोपड़पट्टी हैं, जो हट्स हैं, कच्चा हाउसेस हैं, दे वुड डाई इन देयर हंगर, यानी वो भूख से ही मर जाएंगे रादर देन एनी ऑफ द अदर क्राइसिस, अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. की अगर हमारी जो सोसाइटी है और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर वो पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे ऊपर के प्रायोरिटी दे देता है, ओके, देन ओनली इंडिया कैन होप फॉर द पीपल टू नॉट डाई विद देयर हंगर. कि लोगों को तब हम क्या है, भूखमरी से बचा सकते हैं. ओके, अदरवाइज दे आर डेस्टिन्ड टू दैट. ओके, मतलब उनकी किस्मत में है कि वो मर ही जाएंगे इस तरीके से. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, की जिस तरीके से उनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो होती जा रही है. सो दैट इज़ अ थिंग कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, मर जाएंगे. जो चीज़ें हैं, जो कंज्यूमेबल चीज़ें हैं, वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि जो लोग हैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो दे विल डाई. ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट. कि इस टाइम में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री के टाइम में वी कैन सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न. ओके, ट्रांसेंडिंग का मतलब क्या है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज. ओके, कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज का मतलब है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अफ्रीका और अमेरिका. यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में एक कंसर्न लिया जा रहा है दैट द पीपल सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट. की हमें सिर्फ लोगों का ही सर्वाइवल नहीं चाहिए बट ऑफ द प्लानट, यानी जो अदर लिविंग स्पीशीज है वी हैव टू थिंक ऑफ देयर सर्वाइवल ऑल्सो. ओके, लाइक यू नो हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या है, एक फूड साइकिल मेंटेन किया जाता है. ओके, सो एक फूड साइकिल है कि हम हम जो लोग कार्निवोरस हैं, ओके, तो वो क्या है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है. वी ऑल्सो आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स ऑल्सो. तो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स जो हैं वो और चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है. सो एक पूरा फूड साइकिल क्या है वो जनरेट होता है. और अगर एक भी डिस्टर्ब हो जाता है, एक पॉइंट भी या एक कड़ी भी जो अगर है वो टूट जाती है, देन द होल साइकिल विल गेट दैट इम्पैक्ट. ओके, सो दिस इज़ द थिंग जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर क्या है पहली बार बताया गया है थ्रू दिस रिपोर्ट. वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. की हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए नाउ वी हैव बिकम अवेयर ऑफ अ होलिस्टिक व्यू. होलिस्टिक व्यू का मतलब क्या, दैट वी आर टेकिंग इट एज वन. हम सिर्फ एक कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर टेकिंग द होल प्लैनेट एज वन. Okay, the environmental problem does not necessarily signal our demise, it is a passport for the future. Okay, so यहाँ पर नरेटर बहुत ही एक अच्छी लाइन बोल रहे हैं कि जो ये इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग राइट नाउ, है ना, कि जो हम हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. बट प्रॉब्लम को अगर प्रॉब्लम देखोगे तो हमें उसका सॉल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं. ओके, सो ही स्टेटिंग दैट जो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है दैट डज नॉट नेसेसरली सिग्नल अ डिमाइस, कि वो हमारे अंत का या हमारे डिमोलिश होने का सिग्नल नहीं है. इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. बिकॉज यू नो जो अगर हमें पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो प्लैनेट है वो खतरे में है. सो इट इज़ एक्चुअली एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ एक्चुअली अ वे टू गेट आउट ऑफ इट. हम उससे बाहर निकलने का सोच सकते हैं कि हमें फैक्टर मिल गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, अब उसके लिए क्या करना है, दैट इज़ द थिंग वी नीड टू. ओके, सो दैट्स वाई ही स्टेटिंग दैट इट इज़ द पासपोर्ट फॉर आर फ्यूचर. कि हमारे फ्यूचर के लिए क्या है, एक पासपोर्ट है. अब उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, दैट इज़ द थिंग वी हैव टू सी.
द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, ओके, एमर्जिंग यानी जो इंक्रीज, जो एमर्ज हो रहा है, ओके, न्यू वर्ल्ड विजन, न्यू वर्ल्ड विजन का मतलब क्या है कि जहाँ पर ग्रासलैंड्स ही रहें, जहाँ पर जो फिशरीज़ हैं वो ग्रो हो, और एक जो कंप्लीट साइकिल है हमारे इकोसिस्टम का, जो हमारी पूरे जो इंटरडिपेंडेंस है जितनी भी लिविंग स्पीशीज़ का है, इवन जो हमने अभी अपने जो 4 बायोस्फीयर्स के बारे में बात की, ओके, एंड जो भी हमारी नीड्स एंड वांट्स के बारे में हमने जो बात की, ओके, सो उस वो सब जो हम चाहते हैं वो हमारे किस वर्ल्ड के अंदर आएगा, वो हमारा जो विज़न है दैट इज़ शोन इन आर न्यू वर्ल्ड हैज़ अशर्ड इन द era ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो हम न्यू वर्ल्ड देखते हैं जहाँ पर हमें ये सब कुछ मिले, जहाँ हमें एक अच्छा इकोसिस्टम मिले, जहाँ पर हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन ऑल द लिविंग स्पीशीज़, ओके, तो वो हमें बताता है द era ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। era ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो मैन है ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, हम ही इसको डिप्लीट कर रहे हैं। सो रिस्पॉन्सिबल होने की बजाय क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमें उस न्यू वर्ल्ड का जो विज़न है वो हमें कैसे फुलफिल करना है, ओके। सो इट इज़ अ हॉलिस्टिक व्यू। अगेन एंड अगेन ये वर्ड रिपीट हो रहा है, होलिस्टिक व्यू का मतलब क्या है, दैट वी आर टेकिंग ऑल द स्पीशीज एट एज वन, ओके। एंड इकोलॉजिकल यानी जब हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, जब हम अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, जब हम अपने दूसरे लिविंग बींग्स के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल व्यू। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। तो जब हम एज वन देखते हैं, सो वी शुड नॉट सी द वर्ल्ड एज अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, कि अलग अलग टुकड़ों में नहीं बना हुआ ये, मतलब कि हाँ ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं, यहाँ पर वो है, वहाँ पर वो है। सो वी शुड टेक इट एज एन इंटीग्रेटेड होल मतलब पूरे एक चीज़ को क्या है हमने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटा हुआ है, नॉट टुकड़ों में बांटा हुआ है, ओके। नेक्स्ट ही सेज इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जो ये जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमने बात की है कि जहाँ पर जो लोग हैं दे शुड नॉट फील एज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, although they should they should take responsibility of getting the things done right, okay। so वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री जो है that plays a very important role in this, what a transformation would be affected, okay, कि एक क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा if more businessmen share the view of chairman of DuPont, okay। now द नरेटर इज गिविंग एन अनदर एग्जाम्पल, ओके, कि इस लाइन को, स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि जो इंडस्ट्री है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो ये ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें बता रहे हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इफ़ मोर बिजनेस मैन शेयर द व्यू, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस मैन हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, वो इसी तरीके का जो व्यू पॉइंट है वो रखेंगे, लाइक द चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉइंट मिस्टर एजर एस वुलर्ड, हु 5 years ago, जिन्होंने 5 साल पहले ये स्टेटमेंट दी थी, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया एज अ चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। ही सेड, क्या बोलते हैं वो, आर continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। ही स्टेट्स दैट कि अगर जिस तरीके से इफ़ वी वांट आर एग्जिस्टेंस, अगर हम अपना एग्जिस्टेंस चाहते हैं एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, यानी हम अपनी कंपनी के अंदर, जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर हम जिस तरीके से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके। सो इफ़ वी वांट अ लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस इन दिस फील्ड दैट रिक्वायर्स वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, तो हमें क्या है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की तरफ भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है। लाइक इफ़ अ इंडस्ट्री इज़ प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ द कॉस्मेटिक, ओके, कोई भी किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक, और इफ़ आई टेक अ स्मॉल एग्जांपल, सॉप अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, ओके, सो इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन और यू कैन से द कमिटी, ओके, इफ़ ही इज़ नॉट लुकिंग एट द इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि जिस तरीके से जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स उसके अंदर, जो भी रॉ मटेरियल उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, इफ़ दे आर गेटिंग डिप्लीटेड इनटू द रिवर्स, अगर वो रिवर्स के अंदर डिप्लीट होता जा रहा है, तो वैनिश होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, जो वाटर है इट विल
गेट पॉल्यूट होता जाएगा, एंड वही जो वाटर है इट विल गेट मिक्स इन द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी. ओके, एंड द पीपल हु आर टेकिंग दैट वाटर एज अ रिसोर्स, जिस जो एज अ रिसोर्स उस वाटर को यूज़ कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड ड्यू टू दैट. सो द होल सिस्टम विल गेट अफेक्ट ड्यू टू दैट परफॉर्मेंस. तो यहाँ पर जो मिस्टर एजर हैं वो ये स्टेट करते हैं दैट आई एम द चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, एंड ही स्टेट्स दैट कि अगर मैन्युफैक्चर एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चर मुझे सस्टेन करना है, दैन वी शुड एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. एंड इसका अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो यहाँ पर क्या है, जो नरेटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो आज के टाइम में अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, अगर आप आज के टाइम में हम बिज़नेस की बात करते हैं, तो एज अ बिजनेस मैन क्या है, हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करके रखेंगे. सो इन मैनेजमेंट ऑल्सो देर इज़ अ बिग फैक्टर, एक फैक्टर माना जाता है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में भी बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनी एस्टेब्लिशर्स होते हैं, उनको इन्वायरमेंट की तरफ भी क्या है एक ध्यान देना ज़रूरी है. Next, he says of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her ministership. Okay, so जो Margaret Thatcher है, she was the prime minister of UK. Okay, she was a former prime minister of UK. तो उनकी एक statement के अनुसार क्या है, वो क्या कहती हैं, she has passed so decisively into the current coin of English uses as her फेलिसिटस वर्ड्स, उनके जो वर्ड्स है दैट हैज़ बिकम फेलिसिटस यानी बहुत ही एक शाइनिंग वर्ड्स की तरफ उन्होंने एक बताया हुआ है. नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि कोई भी जनरेशन क्या है उनका, किसी भी जनरेशन का क्या है इस अर्थ के ऊपर क्या है, कोई फ्री होल्ड नहीं है. फ्री होल्ड मतलब वी आर नॉट द मास्टर्स ऑफ दिस अर्थ. ओके, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विद द फुल रिपेयरिंग लीज, कि हम सब क्या हैं, वी आर हेयर फॉर अ लाइफ टेनेंसी, कि हम एज अ टीनेंट यहाँ पर रह रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, जितनी भी हमारी लाइफ है फॉर 70 ईयर्स और 80 ईयर्स. ओके, सो वी आर हेयर एज अ टीनेंट विद द फुल रिपेयरिंग लीज. फुल रिपेयरिंग लीज का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब हम इस लाइफ से यहाँ से बाहर जाएंगे, व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड, सो वी शुड गिव इट अ फुल रिपेयर यानी हम उसको वैसी ही कंडीशन के अंदर छोड़कर जाएं जैसे हमें दी गई थी. इन अदर वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेसर ब्राउन, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, मिस्टर लेसर आर ब्राउन. ओके, सो उन्होंने अपनी जो बुक थी उनकी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, तो उन्होंने उस बुक के अंदर ये लाइन फिर से कही गई थी, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन, की जो ये अर्थ है ये हमें इनहेरिटेड यानी हमें हमारे एंसेस्टर से नहीं मिली है. ओके, हमारे फॉरफादर से नहीं मिली है, ऑल बल्कि क्या मिली है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन, यानी कि हमने क्या है, हम हमारे जो चिल्ड्रन है यानी जो हमारी फर्दर जो जनरेशन्स है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम देम. एंड एज वी नो कि जब हम किसी से कुछ बोरो करते हैं, ओके, सो वी शुड ऑलवेज रिटर्न दैम इन द सेम कंडीशन, हम उनको क्या है सेम कंडीशन में क्या है उनको देकर जाएं. ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर जिसके अंदर हम जो ये एग्जाम्पल था. ओके, सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये अर्थ है, वी कैन नॉट डू वट वी विश फॉर, कि ओके, कि हम जिससे जो हम करना चाहते हैं इस अर्थ के साथ, ओके, सो वी कांट डू विद दैट. हमें जिस कंडीशन के अंदर ये अर्थ मिली है, वी शुड लीव इट एज इन द सेम कंडीशन. ओके, एंड दैट इज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि उनको एन्जॉय करने के लिए या उनकी सर्वाइवल के लिए वी शुड लीव दिस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट दे कैन ऑल्सो इन्जॉय इन द सेम वे एज वी आर डूइंग. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द एलिंग प्लैनेट. ओके, एलिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो खराब होता जा रहा है, जो द प्लैनेट इज़ गेटिंग पुअरर. ओके, सो द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, की जो एलिंग प्लैनेट है, जो डिट्रॉइट होता जो हमारा प्लैनेट है, उसके टुवर्ड्स जो एक ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इन 1972. ओके, सो उसके रिगार्डिंग ही क्या है, नानी पालखीवाला ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी कि किस तरीके से जो ग्रीन मूवमेंट है
ओके, वो स्टार्ट किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। बट नाउ इट्स टाइम कि जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा अवेयर हो उसके बारे में, और ज़्यादा डिस्कस करें एंड टेक फर्दर स्टेप्स ओनली। ओके, सिर्फ एक मूवमेंट से, या हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक ग्रीन मूवमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था और जो पॉपुलेशन है, और यू कैन से द गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग। ओके, इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू टेक केयर ऑफ देयर planet. Okay, so this was in this chapter. I hope you have understood the main criteria behind this report. Okay, read this again, and if you face any problem you can put it in the comment section. I'm here for you always. Okay, so thank you for watching.